واما الصلاه في فتاوى الذي حدث بيده انه كان جملة زينب فقال يا زينب فأجابت بجملة فقال أنت الله ليس لك فقال صلاة والدتي فأجابت بإشارة جملة وإن امرأة ما فعلت لأنه رفض الجواب لأنه رفض الجواب جواب للكلام الذي فأجابت وإن قالت لغير زيد فصلت زيد فقد حوالين طرفا انتهى فقد وصل الصلاة إلى جزء وإلى الحديث نفس لا يراد استقبال يستقبل ويجعل الذكر سواء في الحديث مسلم سواء في الحديث مسلم وحاصل ما قاله بين القول في نفس قصد المعصية بالإخطاء بخلافات المراتب وهذه الأمر لا يحتمل ولا يبقى فيها في بديهيات. بسم الله الرحمن الرحیم. الاصل الثانی من التاسع، نویں بحث کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ دل کی نیت کے ساتھ تلفظ زبان سے کہنا یہ شرط نہیں ہے تمام عبادتوں میں. یہ بتلا چکے ہیں اصل تاسع میں یہی بات کہ محل نیت قلب ہے، نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل. بھائی یہ مائک بند کیجیے آپ لوگ، میں نے پڑھانا بند کر دوں گا. مولانا ارشد صاحب، سب کو الاصل میوٹ الثانی من التاسع. جی مولانا ارشد صاحب. سب کو میوٹ کر دیا گیا ہے. ہاں نہیں دیکھیے ابھی ایک جو ہے عبداللہ دیکھنے بھی کوئی صاحب کھول ہاشمی رہے ان کا کھلا ہوا ہے. ہاں ہیں. عبداللہ صاحب کا کھلا ہوا دیکھیے. الاصل الثانی من التاسع وانه لا يشترط مع نیت القلب التلفظ في جميع العبادات، کہ دل کی نیت کے ساتھ زبان سے کہنا تمام عبادتوں میں شرط نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ زبان سے کہنے کی حیثیت کیا ہے؟ والدہ قال فی المجمع، مجمع میں کہا ہے یعنی مجمع البحرین میں، ولا معتبر باللسان، زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ دل کے ارادے کا ہے. لیکن کیا زبان سے کہنا مستحب ہے یا مسنون ہے یا مکروہ ہے؟ کئی اقوال ہیں، مستحب، مسنون، مکروہ. ہدایہ میں پسند کیا ہے یا اختیار کیا ہے پہلے کو، اس کے لیے جس کا ارادہ مجتمع نہ ہو، جو اپنے ارادے کو جمع نہ کر سکے، یعنی پراگندہ خیال ہو، وسوسے کا مریض ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ زبان سے کہہ لے. صاحب ہدایہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے. اور فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے زبان سے نیت کہنا منقول نہیں ہے، نہ صحیح حدیث میں، نہ ضعیف حدیث میں، بڑھا لیجئے نہ موضوع حدیث میں. یعنی کسی نے حدیث گڑھنے کی بھی جرات نہیں کی ہے. طرح طرح کی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، لیکن نیت کے سلسلے میں، زبان سے نیت کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں گڑھی گئی ہے کہ نماز کی نیت ایسی ہوگی، فلاں کی نیت ایسی ہوگی. وزاد ابن امیر الحاج، ابن امیر الحاج نے یہ اضافہ کیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ منقول نہیں ہے ائمہ اربعہ سے. تو ائمہ اربعہ سے بھی منقول نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے. مفید نامی کتاب میں ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے زبان سے نیت کرنے کو مکروہ کہا ہے. دوسرے لوگ سنت سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سنت النبی تو نہیں ہے یہ. نہ سنت النبی ہے، نہ سنت الصحابہ ہے، اور نہ سنت ائمہ الاربعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے اسے سمجھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اسے سنت سمجھ کے کہتا ہے تو راجح یہ ہے کہ یہ بدعت ہے.
जबान से नियत कहने को सुन्नत समझना, ये क्या है? बिदात। एक ऐसा अमल जिसकी सुन्नियत साबित नहीं है उसको सुन्नत समझना, यही क्या है? बिदात है। वफिल मुहीत, मुहीत नामी किताब में है कि जबान से कहना ये सुन्नत है, लिहाजा मुनासिब है कि कहे कि ऐ अल्लाह मैं फला नमाज का इरादा करता हूँ, उसे मेरे लिए आसान कर दे और मुझसे कबूल कर ले। लेकिन किताबुल हज में है कि आसानी को तलब करना मनकूल नहीं है सिर्फ हज में। तो हज ये मशक्कत भरा काम है, हज में बहुत ज्यादा क्या है? मशक्कत होती है, एक तवील वक्त तक एहराम की हालत में रहना पड़ता है। उसमें तो आदमी आसानी की दुआ करेगा, लेकिन नमाज में क्या परेशानी है? 5 मिनट में 10 मिनट में आप नमाज पढ़ लेते हैं। इसलिए ये जो दुआ है कि मेरे लिए आसान कर दे, ये किसके लिए है? सिर्फ हज में मनकूल है, उसके अलावा बकिया इबादतों में मनकूल नहीं है। बरखिलाफ बकिया इबादतों के, और हम तहकीक से इस बात को बयान कर चुके हैं शरह कंज में। तिनिया और मुश्तबा में है कि मुख्तार यह है कि जबान से नियत करना मुस्तहब है। वह खरजन हादल असल मसाइल, तो जाहिर है कि दोनों किताबें गैर मोतबर है, ना कुनिया मोतबर है और ना मुश्तबा मोतबर है। तो सही इस सिलसिले में यही है कि उसके लिए ये इजाजत है जिस जो परागंदा ख्याल हो, मुंतशिर जहन हो, उसके लिए जबान से नियत कर लेना जायज है। और अगर कोई इसे सुन्नत समझ के करता है तो ये बिदात है। इस जाब्ते से चंद मसाइल निकल गए, यानी जबान से कहना जरूरी है, दिल का इरादा काफी नहीं है। उसमें से एक नजर है, उसके वजूब के लिए नीयत काफी नहीं है। उसमें से क्या है? नजर। तो महज दिल में इरादा हो किसी काम के करने का, पुख्ता इरादा हो कि अल्लाह के लिए मैं 10 रकत पढ़ूंगा, तो इस दिल के इरादे की वजह से वो चीज वाजिब नहीं होगी, बल्कि नजर वाजिब कब है? जब जबान से कहें। उसमें से एक नजर है, उसके वजूब के लिए नीयत काफी नहीं है बल्कि तलफ्फुज जरूरी है। फुकहा ने इसकी सराहत की है बाबुल एतकाफ में। इसीलिए मसला गुजर चुका है कि कुर्बानी के इरादे से खरीदने की वजह से फकीर के लिए कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इरादा महज काफी नहीं है, बल्कि क्या कहे? जबान से कहे। वल्ला बुद्दा मिन तलफ्फुज बिही, बल्कि नजर का तलफ्फुज करना यानी जबान से कहना जरूरी है। फुकहा ने बाबुल एतकाफ में इसकी सराहत की है। वमिनहा अल वक्फ, उसमें से एक वक्फ है, यानी महज नियत से कोई चीज वक्फ नहीं हो जाएगी बल्कि जबान से कहना जरूरी है। वलो मस्जिदन, अगरचे मस्जिद का वक्फ हो, लाबुद्दा मिनल लफ्ज़ि दाल अलैहि, जरूरी है ऐसे लफ्ज का होना जो वक्त पर दलालत करे। महज नियत से कोई चीज वक्फ में शामिल नहीं मानी जाएगी, किसी जगह को वक्फ नहीं कहा जाएगा जब तक कि जबान से न कहे। रहा उसके शुरू का मौकूफ होना नमाज में और एहराम में जिक्र पर, और नीयत काफी नहीं है, तो इसलिए कि ये शुरू की शराइत में से है। नमाज शुरू करने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह अकबर। नियत के साथ क्या है? जबान से क्या कहें आप? अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अकबर नियत तो है नहीं। अल्लाह अकबर मतलब बात किसकी चल रही है? नियत की चल रही है ना। अल्लाह अकबर ये नियत नहीं है, ये तो नमाज शुरू करने के लिए शर्त है। ऐसे ही हज में एहराम के साथ लब्बैक कहना ये क्या है? शर्त है। हम बतला चुके हैं कि आदमी मुहरिम कब होगा? जब नियत के साथ क्या करे? वो लब्बैक कहे या कुर्बानी के जानवर को अपने साथ लेके जाए, तब वो हालत एहराम में होगा। महज एहराम का कपड़ा पहन लेने की वजह से, नियत कर लेने की वजह से हालत एहराम में नहीं आएगा। तो जाहिर है कि इसका ताल्लुक नियत से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है?
हालत एहराम के लिए शर्त है जबान से लब्बैक कहना, नमाज शुरू करने के लिए शर्त है जबान से अल्लाह अकबर कहना, इसका नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। रहा नमाज का के शुरू होने का रहा उसके शुरू होने का मौकूफ होना नमाज में और एहराम में जिक्र पर, और महज नियत काफी नहीं। जिक्र पर समझ गए आप, नमाज कब शुरू होगी? अल्लाह अकबर जब कहें। एहराम में कब आएंगे? जब लब्बैक कहें। तो इसलिए कि ये दोनों चीजें शुरू की शर्तों में से है। किसमें से है? शर्तों में से है। अम्मा तलाक वल इताक, तलाक और इताक ये दोनों चीजें भी महज नीयत से वाक़े नहीं होती हैं। तो तलाक का क्या कर ले? अस्म बिल जज्म, तलाक दे के रहूंगा, तलाक दे रहा हूं, दिल में क्या है? इरादा है। तो महज इस इरादे की वजह से उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, और उसका गुलाम है तो वो आजाद नहीं होगा। तलाक और इताक ये दोनों चीजें वाक़े नहीं होती हैं नीयत से, बल्कि जरूरी है जबान से कहना, सिवाय एक मसले के जो फतावा काजी खां में है। क्या है मसला? एक आदमी की दो बीवियां हैं, अमरा और जैनब। फकाल या जैनब, उसने क्या कहा? ऐ जैनब। तो अमरा ने जवाब दे दिया, क्या बात है? उसने पुकारा होगा ऐ जैनब, तो जैनब कहीं मशगूल होगी। अमरा ने कह दिया क्या बात है? कहा अंत तालिकुन सलासन, तुझको 3 तलाक। जाहिर है कि तुझको 3 तलाक है, किसको? जिसने जवाब दिया है। यहाँ तो लफ्ज मौजूद है इसके लिए, क्योंकि इसने कहा क्या बात है, उसी को मुखातब बना के क्या कह रहा है? तुझको 3 तलाक है। तो तलाक वाक़े हो जाएगी जिसने जवाब दिया है, अगर वो उसकी बीवी हो। और अगर उसकी बीवी ना हो तो बातिल हो जाएगी। उसकी साली साहब ने जवाब दे दिया है तो नहीं तलाक वाक़े होगी। लिअन्नहु अखरजल जवाब जवाबन लिकलामी लती अजाबतहु, इसलिए कि अंत तालिकुन उसने कहा है उसके जवाब में जिसने उसे जवाब दिया है। यहां तक तो बात ठीक है। आगे एक मसला देखिए। वह इन काल नवई तो जैनब, अगर कहता है कि मैंने जैनब का इरादा किया था, तो जैनब पे तलाक पड़ जाएगी। तो जैनब पे तलाक वाक़े हो गई है महज नीयत से। किससे? महज नियत। सवाल ये एक महज नियत कहाँ है? महज नियत है, तलाक के अल्फाज मौजूद हैं। अलबत्ता कह रहा है कि इन अल्फाज से मुराद क्या है? ये तुमने जवाब दिया है, तुझको मैंने तलाक नहीं दी है। मैंने तलाक किसको दी है? जैनब को तलाक दी है। मैंने जैनब को बुलाया था, तुमने बोल दिया है तलाक मैंने किसको दी है? जैनब को दी है। तो महज अल्फाज नहीं है, वो महज नियत नहीं है, बल्कि नियत की पुष्ट पे क्या है? अल्फाज हैं, और उन अल्फाज से फलां की नियत कर ले रहा है बस। जैसे कि कहा जाए एहदा कुमा तालिकुम, तुम में से एक को तलाक है, और नियत कर लेता है किसी एक की, तो उस पर तलाक वाक़ हो जाएगी। वह मिनहा हदीसुन नफ्स, और उसमें से एक हदीस नफ्स है। क्या है? हदीस नफ्स। तो दिल में जो बात आती रहती है, आदमी खुद से गुफ्तगू करता रहता है, खुद कलामी में मुब्तला रहता है, उसका मुआखजा नहीं होगा। उसमें से एक हदीस नफ्स है, उस पर भी मुआखजा नहीं होगा जब तक कि वो उसे बोले नहीं या उसके मुताबिक अमल न करे, जैसा कि मुस्लिम की हदीस में है। दिल में जो ख्यालात आते हैं इसके बारे में कहा गया है, उसकी क्या है? 5 किस्में हैं, उसकी तफसील कर रहे हैं। वह हासिल माकालू हो, इस सिलसिले में फुकहा या मुहद्दिसीन ने जो कहा है उसका हासिल यह है कि दिल में मासियत या ताअत के इरादे से जो चीजें आती हैं उसके 5 दर्जे हैं। चाहे मासियत का इरादा हो, चाहे ताअत का इरादा हो, उसके 5 दर्जे हैं। नंबर 1 हाजिस।
हाजिस वो है जो दिल में आए। दिल में क्या है? अचानक कोई चीज ख्याल आ जाए, तो आए गुजर जाए। हाँ, आए क्या है? गुजर जाए, तो उसका नाम क्या है? हाजिस। जाहिर है कि गैर अख्तियारी चीज है। कोई चीज दिमाग में आए ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई चीज आ जाती है? नहीं आ जाती? आ जाती है ना। तो अल हाजिस वो है जो, वो चीजें हैं जो दिल में अचानक आ जाएं। फीहा या नफ्स, हा की जमीर का मर्जा क्या है? अन्नफ्स। फिर वो चीजें उसमें जारी रहें। एक चीज अचानक आए और उसके बाद क्या, थोड़ी देर रहे, उसी का नाम क्या? खातिर। क्या है? खातिर। फिर तीसरा दर्जा है हदीसुन नफ्स का। तो वो ख्याल, वो चीज है जिसके सिलसिले में तरद्दुद वाक़ हो जाए कि क्या करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए इसे या नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज है, बुरी चीज है, अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, और तरद्दुद हो रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इसी का नाम क्या है? हादिस। सुम्मल हम, हादिस के बाद क्या है? हम क्या है? जानिबे फेल लाजे हो जाए, चाहे ताअत हो चाहे मासियत हो, जानिबे फेल का रुझान बन जाए, हाँ ठीक है, अब उससे लज्जत लेने लगे, उसका नाम क्या है? हम। वह हुआ तरजीह कस्दुल फेल, और वो काम के करने के इरादे को राजे कर देना है। और इसके बाद आखिरी दर्जा है अज़्म का। अज़्म क्या है? उसी इरादे का कवी होना और उस पर पुख्ता इरादा कर लेना। हाजिस का इजमान मुआखजा नहीं होगा, इसलिए कि वो उसका फेल नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो उस पर आ गई है, जिसमें उसका कोई कुदरत नहीं है और कोई दखल नहीं है। वल खातिर वल्लदी बादहू, खातिर और खातिर के बाद जो आ रहा है, उसको तो दफा करने पर वो कादिर था। वल खातिर वल्लदी बादहू कान कादिरन अला दफ़इही बिसरफिल हादिस अव्वल उरूदी। हादिस को, आने वाले ख्याल को दूसरी तरफ फेर करके आते ही दिल में गलत ख्याल आया, उसको क्या करते हैं आप? झटक धर, गलत चीज है। तो कादिर तो है, इस ख्याल के लाने पे कादिर, तो आने पे कादिर नहीं, वो तो अचानक चीजें आ जाती हैं नहीं, लेकिन उसके बाद उसको झटकने पे वो क्या है? कादिर है। लेकिन खातिर और उसके बाद हदीस नफ्स, ये दोनों मरफू हैं सही हदीस से। और जब हदीस नफ्स मरफू है तो उससे पहले वाला तो बदरजे औला मरफू है। दोनों मरफू हैं हदीस से। सर हदीस में जो तस्करा है वो किसका है? हदीस किसका है? हदीस नफ्स का। उससे पहले क्या है? खातिर। वही बतलाना चाहेंगे, जब हदीस से नफ्स मरफू है तो खातिर तो बदरजे औला मरफू है, गोया कि ये भी क्या है? हदीस से साबित है। वहादी सलासा, ये तीनों चीजें अगर नेकियों में हो तो उसकी वजह से कोई अज्र नहीं लिखा जाएगा। आजिस, खातिर, हदीस नफ्स, नेकी के भी सिलसिले में हो तो इसका कोई अज्र नहीं होगा। ले अदमिल कस्द, इसलिए कि इसमें उसका कोई इरादा नहीं होता है। वह अम्मल हम, और अगर हम हो जाए, चौथा दर्जा ना हम का, तो हदीस से सही में ये बयान किया गया है कि नेकी का इरादा कर लेना, वो एक नेकी लिख दी जाएगी। अज़्म नहीं बल्कि क्या है? सिर्फ हम है। हदीस में लफ्ज हम आया है ना, तो हम पे भी क्या है? एक नेकी लिख दी जाएगी, अगर से वो नेकी ना करे।
और अगर और बुराई का इरादा कर लेना, ये बुराई नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह ताला करम है, नेकी का इरादा करें तो नेकी लिख ली जाएगी, बुराई का इरादा करें तो बुराई नहीं लिखी जाएगी। और इंतजार किया जाएगा। फ़इन तरकहा लिल्लाहि ताला, अगर उसे वो छोड़ देता है अल्लाह ताला के लिए, इसलिए नहीं कि मौका नहीं मिला, बुराई का मौका नहीं मिला, लोग देख रहे हैं इसलिए छोड़ दिया है, नहीं। तरकहा लिअजली, हदीस में है मेरे लिए छोड़ देता है, गुनाह का इरादा करता है लेकिन अल्लाह के खौफ से, अल्लाह से डर करके उस गुनाह को तर्क कर देता है। ज़ाहिर है ये भी क्या है, एक नेकी। बुराई का इरादा किया और अल्लाह के डर की वजह से उसने उसे छोड़ दिया है, तो उस पर भी एक नेकी लिखी जाएगी। और देखा जाएगा अगर वो उस बुराई के इरादे को छोड़ देता है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तो एक नेकी लिखी जाएगी। और अगर उसे कर लेता है तो एक बुराई लिखी जाएगी। एक बुराई लिखी जाएगी मतलब, यानी जो बुराई किया है बस वही लिखा जाएगा, उससे पहले जो इरादा किया था वो नहीं लिखा जाएगा। नेकी के सिलसिले में क्या है, नेकी का इरादा किया लिख लिया, नेकी कर लिया वो अलग से लिख लिया गया। इरादे पर भी सवाब और अमल पर भी सवाब। यहाँ क्या है, इरादे पे कोई अजाब नहीं है, अमल पे अजाब है। बुराई का इरादा करता है उस पे कोई अजाब नहीं है, अमल कर लेता है तो अजाब है। तो हदीस में जो कहा गया एक है, इसका मतलब यही है। जी, इसी की तलकीन करते हैं। अच्छा, और अगर उस बुराई को कर ले तो एक बुराई लिखी जाएगी। एक बुराई लिखी जाएगी क्या मतलब है, उसका मतलब इसके मफहूम के सिलसिले में ज्यादा सही यह है कि सिर्फ वो फेल लिखा जाएगा। यही मतलब है अल्लाह के रसूल के कौल वाहिदा का, एक लिखा जाएगा, यानी उस फेल का अजाब लिखा जाएगा। वो अमल हम फमरफून, इससे पहले जो बुराई का इरादा है, अमल से पहले जो इरादा है वो क्या है, मरफू है, उस पर कोई मुआखजा नहीं है। वो अमल अज़्म फल मुहक्किकून, अज़्म तो मुहक्किकीन इस बात के कायल हैं कि उसका भी उस पर भी मुआखजा होगा। बुराई का क्या है, अज़्म बिल जस्म है, उस पर मुआखजा होगा अगरचे वो काम न करे। काम कर लेता है, जाहिर है कि इस अज़्म का भी मुआखजा होगा और उस काम का भी मुआखजा होगा। वो हदीस है ना, फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार, कातिल मक्तूल दोनों क्या होंगे, जहन्नम में जाएंगे। लोगों ने कहा भाई कातिल की बात तो समझ में आती है, मक्तूल क्यों जाएगा? आपने फरमाया वो भी अपने साथी के कत्ल करने के लिए हरीस था, उसका भी पूरा इरादा था कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, लेकिन मौका इसको मिला, उसे नहीं मिल सका। तो ये जो दोनों जहन्नम में जा रहे हैं किस वजह से जा रहे हैं, इरादे की वजह से जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के कत्ल करने का पुख्ता इरादा किया था। तो अज़्म पर भी अजाब मिलेगा, अगरचे ये अजाब फेल से कमतर होगा, फेल जैसा अजाब नहीं होगा। अगर महज आज़म ही को खत्म कर दे तो अजाब होगा, लेकिन वो फेल जैसा अजाब नहीं होगा। वमिनहुम मन जअलहु मिनल हम्मिल मरफू, बाज लोगों ने अज़्म को भी हम्मे मरफू में शामिल रखा है, यानी जिस तरह से हम पर कोई मुआखजा नहीं होगा, इसी तरह से अज़्म पर भी कोई मुआखजा नहीं होगा। वाफिल बज़ाज़िया मिन किताबिल कराहिया, बज़ाज़िया की किताबुल कराहिया में है, हम्मा बिमासियतिन, किसी मासियत का इरादा किया गुनहगार नहीं होगा अगर अज़्म मुसम्मम न हो। और अगर अज़्म कर ले तो अज़्म का गुनहगार होगा, न कि जवारे से अमल करने का गुनाह। ये मैंने मतलब आपको, इस अज़्म का गुनाह होगा लेकिन ये फेल के गुनाह से कमतर होगा। इल्ला यकून, मगर ये कि वो मामला ऐसा हो जो महज अज़्म से मुकम्मल हो जाता हो, जैसे कि कुफ्र का यही मसला है।
تو بعض افعال کیا ہوتے ہیں؟ افعال القلوب ہوتے ہیں، وہ نحو والا افعال القلوب نہیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، زبان سے کہنے، اعضاء اور جوارے سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حسد ہے، کبر ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اب ایک آدمی خود کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں، کرتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، چلنے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ ہم چمن دیگرے نیس، اس علاقے کا سب سے بڑا علامہ پیجامہ میں ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خیال پکاتے رہتے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ اس علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوں، فلاں ہوں۔ تو اگر حسد ہے، کبر ہے، یا اور جیسے یہ معصیتیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ محض دل سے ہے۔ تو دل میں ہے پختہ ارادہ، حسد کر رہا ہے، کسی سے جل رہا ہے، وہ اسے اس کا گناہ ملے گا۔ بس کیا صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔